अब 9-10 हो गए. व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, यहाँ पे मैंने एक आपको पॉइंट बताना है कि गवर्नर ने एक माइक्रोफोन आपका रिसीवर लगाया था एवेंस के सेल में. हाँ, ऑल द साउंड्स ओवर देयर वुड बी ऑडिबल टू गवर्नर. उसने ये एक अरेंजमेंट, ये भी एक अरेंजमेंट किया हुआ था. ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल एवेंस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन दैट वॉज ओनली फेयर, एज इफ एवेंस वुडंट स्पॉट इट. तो उसने बोला था कि एवेंस को बता देना कि यहाँ पे रिसीवर है, कोई फालतू बात ना करे. बट wasn't it all a bit theatrical, schoolboyish almost? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from recreational Brock? Much easier. But he hadn't. And there he was now, sitting in the locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as haystack. तो ये सारी तैयारियां बारी बारी गवर्नर के माइंड में एक डाउट ला रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं कुछ हो रहा. अब यहाँ मेरा पॉइंट है कि जब 3 बारी ही हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन द जेल एंड ही इज़ ऑलरेडी रन अवे, वाई शुड गवर्नर और एनीबडी डाउट हिज कैपेबिलिटीज? So it was really foolish of them that they were doubting themselves or they were doubting Evans or what. So that was wrong. So they actually had to be extra tight in terms of security and being alert. So we continue. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that strictest silence was observed. But that little nagging doubt, might Evans try to take advantage of McCleary, get him to smuggle in a chisel or a two, or a rope ladder, or... The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McCleary? What if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in something himself? A jackknife perhaps? And what if Evans had held him hostage with such a weapon? तो यहाँ पे डाउट फिर से आ रहा है कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं कर रहे और कि मकलेरी के लिए वो कुछ गलत वेपन ना ले आए, उसको हार्म ना करे. सो गवर्नर की जो इंट्यूशंस बार बार आ रही हैं, यू हैव टू नोट दैट ये सभी कुछ होने वाला है एक्चुअली चैप्टर में. सो हिज इंट्यूशंस वर राइट बट ही डजंट लिसन टू देम. इतने सारे अरेंजमेंट्स वो करता है बट दे ऑल आर रेंडर्ड यूजलेस लेटर ऑन. The governor reached for the phone. It was 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." Jackson quickly explained the governor's worries and McCleary patiently held out his arms at shoulder level while Jackson lightly frisked his clothes. "Something hard there, sir." तो फटाफट से गवर्नर ने उसको बोला कि थोड़ा सा चेकिंग कर लो भाई, कहीं McCleary के पास कुछ गलत ना हो. Now governor could hear every sound inside the cell. यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, वो सुन सब कुछ सकता था लेकिन उनको कुछ बोलने के लिए उसको जैक्सन से फ़ोन पे बात करनी पड़ती थी, जो कि डीविंग में ड्यूटी पर था और वो आगे स्टीफन को कन्वे करता होता था. तो स्टीफन ने चेकिंग करवाई जैक्सन इसकी मकलेरी की. ये उनकी मिस्टेक थी. अभी एक और मिस्टेक वो करेंगे, कमेंट देखना. सो उसको मिला कुछ माई रीडिंग ग्लासेस. अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान दो, एक स्पेक्टिकल उसने पहले, एक स्पेक्टिकल का केस उसकी पॉकेट में है, मतलब होगी ना डबल. लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस. उसने सूटकेस खोला, अब उसको भी चेक करेगा. He picked up each envelope in turn, carefully pressed his palms along the surfaces and seemed satisfied. उसको लगा कुछ भी गलत नहीं है envelope में. He riffled cursorily through the few pages of Holy Writ. उसने एक बुक, जो 2-3 बुक्स थी, उसको भी टर्न किया. मैगजीन था चर्च टाइम्स, उसको भी देखा, सब कुछ ठीक. But one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. लेकिन एक चीज़ गड़बड़ लग रही थी. Do you mind telling me why you brought this? He held up a smallish, semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. छोटी सी आधी भरी हुई रबर रिंग थी. उसका पर्पस क्या था? यू थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? तो मकलेरी ने एक एमिएबल डिमीनर दिखाया, फ्रेंडली सा एक्सप्रेशन दिया, और इट वॉज स्लाइटली रफल्ड बाय इस टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट्री. उसके इस क्वेश्चन को उसने अजीब सा आंसर दिया, अजीब सा मुंह बनाया और उसने आंसर दिया. इफ़ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना ज़रूरी है, आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स. हेमरॉइड्स पाइल्स नाम की एक प्रॉब्लम है जिसमें बैठना मुश्किल होता है.
एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर लेंथ ऑफ टाइम, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, मुझे अपने नीचे कुशन रखना पड़ता है. Very sorry, sir. I didn't mean to. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife. और दूसरी चीज़ उसको गलत जो लगी वो थी एक पेपर नाइफ केस के बॉटम पे. आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो if you don't mind. That is, it was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. तो उसने देखा कि एग्ज़ाम में अभी थोड़ा और टाइम लग जाएगा शुरू होने में. अब ये किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम 9:15 पे शुरू होना है, तो ये लोग अब अंदाजे से एग्ज़ाम शुरू करेंगे. सो एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट लिटिल लेट. 15 पे शुरू होना था, ये 18-20 पे शुरू होगा. अब ये उनकी मिस्टेक्स मैंने साथ साथ मार्क करी हैं. वो देखा ना कि उसने एक अच्छा से अच्छी तरह चेकिंग नहीं करी, पेपर नाइफ को कॉन्फिस्केट तो कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम को उन्होंने जब अब शुरू करना है तो ये भी उनकी मिस्टेक थी. McCleary, you've got a watch. Yes, sir. I'll be telling you when to start and again when you've 5 minutes left. All right? Silence. McCleary, he says, there's plenty more of this writing paper. Should you need it? Now write the name of the paper. यहाँ आपने mark करना है. 0211 in the top left corner. In the top right corner, index number 313 and the box just below that, center number 271. ये दो नंबर्स आपने याद करें क्योंकि ये दो नंबर्स ही हैं जिनसे उसको बाद में मैप के लोकेशन में ये नंबर्स यूज़ होंगे. इन नंबर्स की कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ भी बोली जा रहा है और उसको लिखवाई जा रहा है, तो ये भी उनकी मिस्टेक. Now I'm going to is not going to stay here, is he? I don't know about that. Mr. Jackson has given me instructions to. अब स्टीवंस के बारे में बात हो रही है, क्या तुम अंदर ही रहोगे? अब एवंस, how am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Christ, sorry sir, I didn't mean. The governor reached out for the phone. Jackson, okay, get Stephens out of that cell, will you? I think we are perhaps overdoing things. अब गवर्नर के अंदर फिर से डाउट है कि वो कुछ ज़्यादा ही डर रहा है, एवंस इतना भी क्या कर लेगा, और ये बात सोच के वो स्टीफन्स को अलाउ कर देता है वहाँ से बाहर आ जाना. एज यू विश सर. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, heard the door clang once more, and heard McCleary announce that the examination had begun at last. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. अब 9:25 हो गए, काम है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया. स्टीफन को उस सेल से बाहर निकाल दिया गया. अब ये इसके टैंट्रम्स थे और एवंस को पता था कि वो ऐसे टैंट्रम्स करेगा तो सारे मान जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी कैन बी ईजिली बी फूल्ड, दे आर गुड एट हार्ट. 9:40. अब 9:40 पे क्या होता है, एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू और वहाँ से बोल रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस, और वो गवर्नर से बात कर रहे हैं. द एग्ज़ाम हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट. अब उन्होंने पूछा, उसने क्या पूछा, एग्ज़ाम शुरू हो गया? हाँ, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो. और उसने ये भी बताया कि 15 मिनट पहले शुरू हुआ है. वेल येस, देयर इज अ करेक्शन स्लिप दैट सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज. अब वो करेक्शन स्लिप के बहाने से उसने फ़ोन करा और बात निकलवाई कि कितनी देर पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ. वेरी ब्रीफ. कुड द गवर्नर प्लीज? येस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू राइट थ्रू द मिस्टर जैक्सन इन लीविंग. होल्ड अ लाइन मिनट. और ये करेक्शन स्लिप जो है आगे पहुंचा दी जा रही है. वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? अब फिर से डाउट आया. वॉज द फोन कॉल अ फेक? अब मैं आपको बता रही हूँ, येस इट वॉज फेक. सारे इंट्यूशंस हैं गवर्नर के, वो सब प्रूव होंगे कि करेक्ट. सम सिग्नल, हाँ इसमें सिग्नल था पर उन्होंने पकड़ा ही नहीं. सीक्रेट मैसेज, येस देयर वॉज अ सीक्रेट मैसेज, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. तो उन्होंने डायल किया नंबर ऑफ एग्जाम बोर्ड और उन्होंने स्टैकेटो बीप्स ऑफ लाइन एंगेज्ड आई. उसको पता लगा अच्छा मतलब नंबर तो एग्जाम बोर्ड से ही आया है, लेकिन उसने उसको वेरीफाई नहीं किया क्योंकि एक्चुअली एग्जाम बोर्ड से ही कोई उसकी हेल्प तो कर रहा था, लेकिन इस बात को गवर्नर ने वेरीफाई नहीं किया. नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट. 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell and McCleary's broad Scots voice. ये आपको मार्क करना पॉइंट. McCleary जो थे ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट में बोलते थे और उन्होंने क्या बोला, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग वी वाइल मिस्टर एवंस एंड लिसन केयरफुली. कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन. करेक्शन क्या थी वो मैं अभी रीड करती हूँ, आप यहाँ पे ये देखिए. तो ये फेक कॉल आई है, फेक कॉल के 2 पर्पसेस थे, वो मैंने बॉक्स में लिखे, आप उनको लर्न करना. और मिस्टेक क्या थी, करेक्शन स्लिप की वेरिफिकेशन वो नहीं करते, और ये जो जितने भी इंट्यूशंस हैं वो गवर्नर की सही होने वाली थी. ऑन पेज 3. आई होप यू आर लाइकिंग माई क्लासेस. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एट ई क्लासेस विद शालिनी मैम. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Line 15. Fourth word should read golden, not golden.
And the whole phrase shall therefore read Zum Goldenen Lowen, not Zum Goldin Lowen. I repeat that. दो बार रिपीट करा. जगह का नाम है गोल्डन लायन और गोल्डन लायन उस होटल का नाम होने वाला है जहाँ पे एवेंस को पहुँचना है एस्केप करके. तो ये करेक्शन स्लिप का पर्पस था. नाउ गवर्नर न्यू थोड़ी बहुत जर्मन बट ही वॉज नॉट परफेक्ट एट जर्मन. और ये बात किसी को एवेंस को पता नहीं थी. यही वहाँ पे यही एवेंस की एक गलती होने वाली है यहाँ पे. द गवर्नर listened and smiled. He had taken German in the sixth form himself, and he remembered all about agreements of adjectives. And so did McCleary, by the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. अब यहाँ पे गवर्नर को लग रहा है उसको जर्मन बड़ी अच्छी आती थी. मक्लेरी की मैं आपको बात नोट करना चाहूँगी. देखो मक्लेरी स्कॉटिश एक्सेंट में बोल रहा था. इंग्लिश तो वो ढंग से बोलता नहीं था. तो जर्मन परफेक्टली वो कैसे बोल सकता था? ऐसे बोल सकता था कि वो उतने की जर्मन लर्न करके आया था. तो ये रटा रटा आया था. तो और गवर्नर इस बात से इम्प्रेस हो रहा है. तो गवर्नर वॉज अ फूल. दोबारा एक फोन कॉल आती है मजिस्ट्रेट्स कोर्ट. दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स. रिमांड केस. विद इन 2 minutes गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स. फिर से इंट्यूशन आई. ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली. इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट. बट ये उसकी मिस्टेक थी. प्रिजन वैन का पर्पस आपको बाद में पता चलेगा जब वहाँ से एवेंस दोबारा गोल्डन लायन से भागेगा. इस फोन कॉल की भी वेरिफिकेशन नहीं की गई. पॉसिबली द प्रिजन वैन वॉज सेंट ऑल्सो. ये लिखा नहीं डायरेक्टली पर मैं मान के चलूँ कि वो भेजी गई थी. So, Evans, for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. तो स्टीफन जो कि बड़ा सीरियस कैलकुलेटिव सा बंदा था, वो एग्जैक्टली 1 या 2 मिनट के बाद पीप इन करता था. 1 मिनट का टाइम बहुत होता है. कोई किसी को अगर किसी ने कोई शरारत करनी है, किसी को कुछ काम करना है, कपड़े कुपड़े चेंज करने हैं, तो वो सब करने के लिए एवंस के पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता था. 10:45 पे एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीपल वंस मोर. अब वो देखता क्या था? 10:45 तक ये चलता रहा. क्या चलता रहा? इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स. इतनी देर के लिए वो देखता था और 1 या 2 मिनट वो देखता ही नहीं था. वॉट वॉज द पॉइंट? देखने का फायदा ही नहीं था कोई. क्यों? एवंस ऑलवेज हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स sat staring straight in the front of him towards the door. घूर घूर के दरवाजे को देख रहा होता था. Seeking it seemed some sorely needed inspiration from somewhere, कि कोई उसको आंसर बता दे. अब ये आंसर की इंस्पिरेशन नहीं थी. वो डोर को इसलिए देखता था कि स्टीफेंस उसको कब देख रहा है उसको पता लग जाए और उस टाइम वो कोई भी एक्टिविटी करना छोड़ देता था. एंड ऑपोजिट हिम मक्लेरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू, थोड़ा सा परे होके टेबल से. हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, हाफ फेस विजिबल. हिज हेयर, स्टीफन्स ने पहले नोटिस किए थे कि मक्लेरी के हेयर एमेच्योरिशली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प. छोटे छोटे कटे हुए, साफ सफाई से कटे हुए नहीं थे. आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज, स्पेक्टिकल्स के पीछे उसकी आंखें. पेयरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स मैगजीन रीड करते हुए. इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर, कॉलर को पकड़े हुए. इंडेक्स फिंगर होती है हमारी पहली उंगली. एंड फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड से नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड. तो मक्लेरी के बैठने से हमें पता लग रहा है कि उसका कॉलर स्लिप कर रहा है. उसने उसको पकड़ा और उसको दाढ़ी में खुजली भी हो रही है. At 10:50 a.m., the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. Please, sir, would you mind if I put a blanket around me? अब 10:50 पे उसने सेकंड परमिशन लेनी है अपने आसपास ब्लैंकेट पहनने की. ये उसका सेकंड टैंट्रम है. अब यहाँ पे देखो, जब वो स्टीफन्स अंदर घुरूर के देखता था, ये पुलिस वाला, ही इज़ अ प्रिजन ऑफिशियल, ही इज़ नॉट लाइक टीचर्स. एग्जाम में अगर आप बैठे और कुछ लिखो ना, तो इन्विजिलेटर या जो भी ऑब्जर्वर है वो आपको बोल देगा बेटा लिखो. आप बैठे क्यों? आपको काम करें, लिखना है पेपर में, लिखो, कोई छूट ना जाए पेपर. लेकिन यहाँ पे वो प्रिजन ऑफिशियल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एवंस लिख रहा है या नहीं लिख रहा है. उसने उसको कुछ नहीं बोला. सेकेंडली उसने ये भी नोट किया कि एवंस हमेशा दरवाजे को देख रहा है. उसने उस बात पे भी कोई डाउट नहीं किया. थर्डली ही ऑल्सो नोटिसेस दैट द इन्विजिलेटर ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज जस्ट रीडिंग. तो इस बात पे भी उसने कुछ भी उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया. एट 10:50 जब एवंस अब बोलेगा कि आई नीड टू पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड, उसको ये लोग ये भी अलाउ कर देंगे. It's bit parky here, isn't it?
सो एवरीबडी न्यू कि हाँ वहाँ पे ठंड हो जाती है, तो उसको बी क्विक अबाउट इट अलाउ कर दिया. 10:51 Stephens was more than a little surprised to see grey regulation blanket draped around Evans' shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. But Evans, the pen, abhi bhi, pen was between his teeth, staring as vacantly as before, blankly beneath a blanket. Should Stephens report the slight irregularity? Anything at all fishy? Hadn't Jackson said? He looked through the peephole once again. Even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McCleary in the blanket? Don't be daft. There was never any sun on this side of the prison. No heating, either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. तो ये सोच कर कि हाँ वाकई यहाँ पे ठंड बहुत होती है, उसने सोचा कि बेवकूफ़ी होगी, यानी मैं रौला पा दूँ, सबको बोल दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वाकई ठंड होती है, उसको ठंड ही लग रही होगी. At 11:20, the receiver crackled across the silence of the governor's office, and McCleary informed Evans that only 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still gnawed away. Quietly in governor's mind, he reached for the phone once more. अब 11:20 हो गए, एग्ज़ाम चल रहा है, और रिसीवर एक बारी गवर्नर के ऑफिस में रिसीवर की आवाज़ आई. उसको लगा, और मक्लेरी ने उसको बोला एवेंस को कि 5 मिनट रह गए हैं. ये बात सुन के गवर्नर के मन में आया कि कहीं कुछ चल तो नहीं रहा. वो फ़ोन उठा के कुछ बोलने लगा स्टीफेंस को कि मैं कुछ क्रॉस चेक कर लूँ या कुछ पूछ लूँ. बट अब रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, बाद में आपको पता चलेगा. उसने फ़ोन उठाया लेकिन उसने कॉल की नहीं. लेकिन 11:22 पे जैक्सन एक मैसेज देता है. जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफेंस. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक टू हिम. एक कॉल आई, गवर्नर से आई, और स्टीफेंस को बोला गया. स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स. जल्दी जल्दी उसको ऑर्डर्स दिए गए. स्टीफन, ऑर्डर क्या था? स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स. अंडरस्टूड? Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? दो बातें उसको बोली गई. पहले, स्टीफन्स को मक्लेरी को छोड़ने के लिए प्रिजन गेट के तक जाना है. दूसरा, डोर लॉक करके जाना है एवेंस का. मतलब कि एवेंस के पास कोई हो ना उस टाइम, कहीं कोई अंदर चला ना जाए. ये दो बातें बोली. किसने बोली? गवर्नर ने स्टीफन्स को. बट द रियलिटी इज गवर्नर ने ये कॉल नहीं की. गवर्नर फेल्ट लाइक मेकिंग अ कॉल टू स्टीफेंस, बट एक्चुअली ही डजंट डू सो. तो ये कॉल कहाँ से आई? ये एक फेक कॉल थी जो बाहर से कहीं से आई. इसका मतलब उनके प्रिजन के फोन्स भी टैप किए हुए थे. At 11:25 the governor heard the final exchanges. So put your sheets in order and see they are correctly numbered. Scraping of chairs and tables. Thank you very much, sir. All right. How was it? Not too bad. Good, Mr. Stephens. The governor heard the door clang for the last time. Exam was over. तो 9:25 पे एग्जाम ओवर हो गया. अब ऑर्डर क्या है स्टीफेंस को? He has to see off McCleary. How did he get on? Do you think? Asked Stephens as he walked beside McCleary to the main gates. Ouch! I cannot think. He distinguish himself. I'm afraid. और जब ये बात कर रहा था मक्लेरी, उसका स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर. थोड़ा और ब्रॉड लगा, ज़्यादा स्कॉटिश लगा. His long black overcoat reaching almost his knees fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. और वो पतला हुआ भी लगा. तो पॉइंट है यहाँ पे कि स्टीफन ने क्या नोट किया? ब्रॉडर स्कॉटिश एक्सेंट एंड दैट मक्लेरी हैड ग्रोन स्लिमर. अब कोई पतला कब होता है? जब उसके एक्स्ट्रा कपड़े उसने रिमूव कर दिए. Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises. तो स्टीफन इस बात के लिए बड़ा खुश था. वो सीरियस था, एक ऑफिसर था. So all in the morning had gone pretty well, but something stopped him. जब वो वापस आ रहा था from making his way directly into the canteen for a belated cup of coffee. He wanted to take one last look at Evans. तो उसको मन किया एवेंस को देखने का. It was like a program he had seen on TV about a woman who couldn't never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she got up at 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट थे ये लोग एवेंस के साथ, तो उसको इंट्यूशन हुई कि एक बार देख लूँ एवेंस लॉक भी है. सो एवेंस मेक यूज ऑफ दिस ड्यूटीफुलनेस ऑफ स्टीफेंस. He befools them by getting him ordered to see McCleary off, and then because he was so dutiful, he knew that he will come back to check him, and when he comes back to check him, what does he do? He entered Deaving, made his way along Evans' cell and opened the peephole.
Oh no, Christ! They sprawled back in Evan's chair was a man, a grey regulation blanket slipping from his shoulders. और ब्रैकेट में क्या लिखा है? For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. क्यों? क्योंकि Evans ही तो था. He was impersonating McCleary. Though he did not do so perfectly, even then everybody believed because he was wearing the dress of McCleary, they could not think anything else except for the fact that he was not McCleary. Evans had used this time to smear blood. उसने अपने ऊपर वो blood लगा लिया था and be ready to give himself the look of McCleary, and he was not checked after being left by a stranger in the prison. There was too much trust on McCleary. ये दो पॉइंट है जो उसने उनका फायदा लिया. His hair closely cropped, irregularly tufted hair, awash with fierce red blood. अब उसके हेयर कैसे थे इस वाले मकलेरी के? ये ब्लीडिंग मकलेरी मैं इसका नाम बोलूंगी. क्लोजली क्रॉप्ड थे, रेड ब्लड इसके ऊपर था, ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लेरिकल कॉलर डाउन टू द ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट. आप नोट करो, जब ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा खून निकल आता है, तो खून जितना इंजरी वाले पॉइंट से दूर जाता है वो सूखने लग जाता है, बट ये ड्रिप कर करके आगे आगे जा रहा था. इसका हेयर कट बिल्कुल मकलेरी जैसा था. मकलेरी का भी क्लोजली क्रॉप्ड हेयर थे, और उसने जो ड्रेस पहनी थी वो वाली सेकंड ड्रेस थी जो मकलेरी पहन के आया था, डबल ड्रेस, जिस वजह से वो अब पतला लग रहा था जब वो गया था बाहर. तो ये वाला जो अंदर सेल में था ये था फेक मकलेरी. ही इज़ द ब्लीडिंग मकलेरी. उसको खून आ रहा था, और रियलिटी ये है कि ये खुद एवंस है. Stephens shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McCleary's ears. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket. ये वही हैंकी जो उसने फोल्ड करके रखा था, and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. He gave a long yellow moan and tried to speak, but his voice trailed away, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was sticky, squelchy wash of cloth. हैंकी के ऊपर कभी खून लगाए, चोट लगी हो तो वो खून सूख जाता है, बट इस हैंकी पे लगा हुआ खून सूख नहीं रहा था. हैंकी भी उसके साथ स्टिकी हो गया था, स्क्वेल्ची वॉच ऑफ क्लॉथ बन गया था, एक स्क्वेल्ची सा स्टिकी सा चिपचिपा सा कपड़ा बन गया था. क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड था ये नेचुरल ब्लड नहीं था. इट वॉज नॉट इन इट्स नेचुरल फॉर्म. तो लेकिन अब हंसी वाली बात यह है कि प्रिजन अथॉरिटीज दे डील एवरी डे विद दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू नो, क्राइम, ब्लड शेड एंड ऑल दैट. उनको ये नहीं पता लगा कि ये ब्लड नकली है, कि वो टपक रहा है, वो चोर है. उनको दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस. यही उनकी मिस्टेक थी. सो एवरीबडी इज बेफूल्ड, एवरीबडी assumes this man as McCleary, even if वो थोड़ा थोड़ा एवेंस की झलक उसमें थी. ये इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया. नोट करना हमें टेक्सचर ऑफ ब्लड का, मैंने बॉक्स में डिटेल लिखी है, बाकी समझा दी, अब इसको रीड करना. McCleary slowly raised himself, his face twisted tightly with pain. Didn't worry about the ambulance, man. I'm right. Get the police. I know where he. वो शोर मचाने लग गया कि मेरी फिक्र ना करो, मुझे पता है वो कहाँ गया, मैं बताता हूँ, चलो मैं लेके चलता हूँ. जब वो बोल रहा था व्हाट वाज हिज पर्पस, कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे साथ चलो, बाहर निकल के तो आगे गायब हो ही जाएगा वो. यही कुछ फॉलो करता गया गवर्नर. Another drop of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. और टपक रहा था, भारी हो गया था ब्लड, क्योंकि वो क्लॉटिंग नहीं हो रही थी. नेचुरल ब्लड इतना हैवी कंसिस्टेंसी में नहीं होता. His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Let the governor, I know where ends. Almost immediately sirens were sounding. Prison officers barked orders, puzzled prisoners pushed their way along the corridors, doors were banged and bolted, phones were ringing everywhere, and within 1 minute, McCleary, with Jackson and Stephens supporting him on either side, his face streaked and caked with drying blood. वो blood सूख रहा था पर वो clot नहीं हो रहा था. He was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. तो ये सारे बंदे इकट्ठे हो गए. We must get you to hospital immediately. वो कहते हैं हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो क्या बोला? वो बोला नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम पुलिस को बुलाओ. यही उनकी मिस्टेक है. वो उनको बोलता है दे आर ऑन देयर वे, बट आई एम ऑल राइट, लुक हियर. और उसने क्वेश्चन पेपर दिखाया और उसको बोला इज देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन? Governor looked down and realized what McCleary was trying to tell him. Photocopied sheet had been cleverly superimposed over the last page of the question paper. तो एक खाली पेज के ऊपर उन्होंने फोटोकॉपीड शीट रखी थी जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स थी,
और इस डिटेल के अंदर कुछ लिखा हुआ था जो ये वाला जो ब्लीडिंग मकलेरी ये क्लेम करता कि मुझे समझ आ गया, मुझे पता वो कहाँ गए, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ. You see what they've done, Governor. His voice trailed off again, and Governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. तो गवर्नर भी कोशिश करने लग गया कि उस जर्मन में जो लिखा था उसको वो समझे. अब यहाँ पे एवंस ने सोचा कि गवर्नर को जर्मनी की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, मुझे थोड़ी थोड़ी आती थी. Sie sollen dem schon verbaden den Plan genau folgen, der wichtige Zeitpunkt ist 3 Minuten vor Ende des Examens. You must follow the plan already something. The vital point is 3 minutes before the end of the examination, but kuch something. Don't hit him too hard. Remember he is a minister and don't overdo the Scots accent. ये 3 बातें गवर्नर को समझ आई. तीनों बातें उनको पॉइंट्स क्या थे? पहले तो फॉलो द प्लान. नंबर 2, 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम इज इंपॉर्टेंट. डू नॉट हिट द मिनिस्टर एंड डू नॉट डू ओवरडू स्कॉट्स एक्सेंट. ये चारों बातें अब गवर्नर और स्टीफन्स को समझ आ जाएंगी क्योंकि उन्हें यही दिखाया गया था. उन्हें यही दिखाया गया था कि एवंस के पास कोई प्लान है. 3 minutes पहले इंस्ट्रक्शंस आई थी, उन्हें यही उन्होंने देखा भी था क्योंकि लास्ट 3 minutes इंपॉर्टेंट है. उस टाइम वो अकेला था और हिटिंग हुई नहीं थी एक्चुअली. इसमें लिखा डू नॉट हिट हिम हार्ड, तो उसमें उनको लगा कि अरे हाँ वो तो चोट भी मार के भागा है. स्कॉट्स एक्सेंट उनको ये दिखाया जा रहा था कि जो भागा है वो जान के स्कॉट्स एक्सेंट बढ़ा के बोल रहा है ताकि सबको लगे कि वो एवेंस ही अपना भेस बदल के भागा है. तो इस पार्ट में वही बोला गया, वही लिखा था जो उनको लगे समझ. The fast approaching siren waited to his crescendo, and great doors of the prison yard were pushed back, and white police cars squealed to a jerky halt beside him. और किसको बुलाया जाता है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर को. अब ये जो बंदा ये आता है, अब ये डिटेक्टिव है. What the hell is happening, sir? And turning to McCleary, Christ, who's hit him? आते ही 2 सवाल पूछे, पर क्या इन सवालों का कोई आंसर होगा? No. जो ब्लीडिंग मकलेरी है वो किसी को अलाउ ही नहीं करता कि उसको कोई बातें समझाए, क्योंकि जितना उसको समझाते हैं उनको खुद को भी समझ आती, टाइम वेस्ट हो जाता, ये इसको बाहर ना लेके जाता या उन्हें कुछ समझ आ जाता या वो अलर्ट हो जाते, तो वो किसी को बोलने ही नहीं देता. ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. McCleary cut across whatever explanation the governor might have given. Elsfield Way, officer, I know where Evans. He was breathing heavily and he leaned for support against the side of the car. जब वो खुद ही कार के पास पहुंच गया तो सब उसको बिठाने लग जाते हैं. Where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. और अब तक वो ब्लड सूखा नहीं था क्योंकि वो ब्लड फेक था. पर ये सारे के सारे बेवकूफ़ प्रिजन अथॉरिटीज, इनको ये नहीं समझ आया कि दिस ब्लड इज फेक, दैट इज वाई इट इज नॉट क्लॉटिंग. सो दिस इज देयर मिस्टेक. नो, दे अग्रीड टू व्हाट ऑल दे सेड. दे कॉल्ड द पुलिस, नॉट द एम्बुलेंस. ये सब उनकी मिस्टेक्स थी. एम्बुलेंस आती, एम्बुलेंस पता लगा लेती कि फेक इंजरी है, इसलिए उसने एम्बुलेंस को बुलाना अलाउ ही नहीं किया वहाँ पे. चलो लेट्स कंटिन्यू. इन बिविल्डरमेंट, कार्टर तो सरप्राइज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा. ही लुक टू गवर्नर. अब गवर्नर बोले क्या? व्हाट? टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट. ही इज द ओनली वन हू सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग. अब गवर्नर को यहाँ पे एक्ट करना चाहिए था रिस्पॉन्सिबली, पर ही गिव्स अप और वो कहता है कि अरे इसी को पता है कि हुआ क्या है और तुम इसको ले जाओ अपने साथ और इसको ले जाओ यहाँ से और ये जो करता है तुम करो, क्योंकि इसी को पता है कि हो क्या रहा है. अब ये बहुत गलत बात है. गवर्नर ने एक्सेप्ट किया कि उसको खुद को कुछ नहीं पता. ही डजंट नो एनीथिंग डिस्पाइट इट इज हिज टेरिटरी. ही इज द बॉस एंड ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो दैट्स अ वेरी वीक पॉइंट ऑन गवर्नर्स कैरेक्टर. चलो अब कार्टर क्या करे? ही ओपन द बैक डोर एंड हेल्ड McCleary इनसाइड एंड विदिन अ फ्यू सेकंड्स द कार लीप्ड अवे इन द स्पर्ट ऑफ ग्रेवल. और धूल उड़ाते हुए गाड़ी चलेगी. अब वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी एल्सफील्ड वे. मैं आपको बता दूं, एल्सफील्ड वे इज द पॉइंट, इज द प्लेस वेयर एग्जाम बोर्ड इज देयर. और एग्जाम बोर्ड मैंने आपको बताया था, एग्जाम बोर्ड से कॉल्स आई थी और वो सारी की वहाँ पे कोई उसकी हेल्प कर रहा था. McCleary had said, and they were staring up at the governor from the last few lines of German text. From Elsfield Way, drive to Headington roundabout, where yes, of course, exam board was in Elsfield Way, and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. तभी तो जो उसको सेक्रेटरी का एग्ज़ाम आया उसने परमिशन दी, सेपरेट सेल था एवेंस का, हो सकता है वहाँ से भी कोई हो जो उसको हेल्प कर रहा हो. द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, करेक्शन स्लिप. तो यहाँ पे वो ये समझ रहा है कि एग्जाम बोर्ड से भी उसकी किसी ने हेल्प की और पॉसिबिलिटी है जो असिस्टेंट का फ़ोन आया था वहाँ से आया था या एग्जाम बोर्ड की लाइन से आया था, क्योंकि गवर्नर ने क्रॉस चेक भी किया था तो वहाँ पे कोई था जो उसको हेल्प कर रहा था. सो द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई?
और उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब वो अपने जूनियर्स को डांट देगा। तो अब गवर्नर बैठ जाएगा और वो सोचेगा कि इस मिस्ट्री को मैं सॉल्व करूँ कि हुआ क्या है। अब वो जब सोचने लगता है तो वो एवेंस और जैक्सन से बात करता है। अब वहाँ he will ask them a question. Which one of you two morons was it who took Evans out for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? It was me, sir, stammered. Just like you told me, sir, I could have sworn. What? Just like I told you, you say? What the hell? When you rang, sir, and told me to? When was that? The governor's voice was whiplash now. अब इनको समझ आया कि वो फेक कॉल जो एंड में आया था, दैट वॉज फेक. You know, sir, about 20 past 11, just before. You blithering idiot, man, it wasn't me who rang you. Don't you realize? But what's the use? He had used the telephone at that time, but only to try to get through examinations board. उसने एग्जाम बोर्ड में ट्राई किया था कॉल, लेकिन उसका कॉल मिला नहीं था क्योंकि उसका कॉल ऑलरेडी बिजी था. तो किसी और ने उसके फ़ोन से फेक कॉल किया या एग्ज़ाम बोर्ड से फेक कॉल किया या जैसे भी किया, अल्टीमेटली हमें ये पता है कि वो फेक कॉल था, जिस वजह से स्टीफन्स बाहर गया और पीछे से एवंस का डोर लॉक था और एवंस वहाँ पे 3-4 मिनट के लिए अकेला था. नेक्स्ट, he shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long have you been pretending you've got a brain, huh? Well, I'll tell you something, Jackson, your skull's empty, absolutely empty. तो जब गुस्सा आया तो बॉस ने सबको डांट दिया. अब ये जो बात वो जैक्सन को कह रहा है, एक्चुअली इट होल्ड्स ट्रू फॉर गवर्नर ऑल्सो. उसको कौन सा इतने सारे क्लूज मिलने के बावजूद, इतने इंट्यूशन होने के बावजूद, ही ऑल्सो डिड नॉट एक्ट वेल, सो दैट वॉज ऑल्सो एम्प्टी. It was Jackson who had spent 2 hours in Evans' cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. तो फिर कैसे? Nothing at all. And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, pair of spectacles, dog collar, rest of clerical paraphernalia, and also some sort of weapon with which he had given McCleary a terrible blow on the head. Ugh. अब गवर्नर क्या सोच रहा है? गवर्नर सोच रहा है कि ये जो मैंने आपको ब्लू बॉक्स में बताया है कि ये सारी की सारी चीज़ें एवंस ने एक रात पहले से अपने सेल में छुपाई थी. गवर्नर समझने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज स्टिल कंक्लूडिंग द रॉन्ग फैक्ट्स. तो ये सब झूठ है, ये सब गलत है. स्टिल ही इज मिस्टेकन. अ प्रिजन वैन बैग्ड अलोंगसाइड. उसके पास एक प्रिजन वैन तो थी, लेकिन गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव. अब वो सोचता है. ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ जर्मन. To the Headington roundabout, you go straight over. Make your way to New Graben. New Graben? Where on earth? ये तो कोई जगह ही नहीं है. New Grave. Never heard of. There was War Grave. No. But it was probably a code word. Or then Newbury. Oh yes, Newbury. It was a pretty big sort of place. But तो अब उसने गुत्थी सुलझा ली और उसको समझ आया कि हेडिंगटन से अगला क्लू मिलता है न्यूबेरी का. Governor tries to solve it and takes his time to do. He doesn't use the available prison van immediately, so because he's just thinking, and he rapped out orders to the driver. अब वो ड्राइवर को एक इंस्ट्रक्शन देता है. क्या इंस्ट्रक्शन देता है? Go to St. Aldate's police station, step on it, take Jackson and Stephen there, and when you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell. Got that? अब वो कह देता है जैक्सन और स्टीफन को भेज के पुलिस स्टेशन में, और उनको क्या बताएगा? उनको ये बोलेगा कि न्यूबरी में जाओ और वहाँ पे ढूंढो, वो ज़रूर न्यूबरी की तरफ दौड़ा है. अब गवर्नर यहाँ पे सोचता है कि भाई मेरा काम ख़त्म हो गया. अगर यहाँ से एवंस भाग भी गया तो मैंने पुलिस वालों को उसके पीछे लगा दिया, पुलिस स्टेशन वालों को उसके पीछे लगा दिया, ये बता के कि वो न्यूबरी गया होगा. He leave the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone and put the facts before him. और बेल ने बोला, we'll get him sir, we'll get him with a bit of luck. So finally he gets rid of the responsibility to find Evans. अब वो फ्री होके बैठ गया and he admires the intelligence of Evans. He lights a cigarette and he starts thinking, what beautifully laid plan it had been. Such a clever fellow Evans was. उसको appreciate, उसके intelligence को appreciate करता है. अब वो सोचता है कि कितना केयरलेस था कि उसने क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया. अब वो क्वेश्चन पेपर को दोबारा रीड करेगा. Oh, they all made their mistakes somewhere along the line. पर गलतियाँ तो सबने की. स्टीफन्स ने की, जैक्सन ने की, गवर्नर की, तो एवंस ने भी की. Almost all of them. And that's why very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. कि एक बारी फिर से जेल में आ जाएगा. The phone on his desk erupted in a sudden burst. अब अचानक फोन बजता है. Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They got the number of the car all right.
They had given the chase immediately, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. No, he is on his way to Newbury. He explained his reasons for believing so and left it at that. और उसने बोला चलो मैंने तो पुलिस वालों को भेज दिया, तुम फिक्र मत करो. He was just another good for a giggle gullible governor, that's all. और यहाँ पे उसने प्रूव कर दिया कि मेरे पे चाहे तुम हंस लो, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को तो समझ आ गया कि वो न्यूबेरी में है. By the way, Carter, I hope you managed to get McCleary to the hospital all right. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नर ये सोच रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने क्लूज सारे सॉल्व कर लिए, न्यूबेरी में एवेंस है और अब पुलिस वाले को एवेंस न्यूबेरी में भेज दिया, मतलब एवेंस पकड़ा जाएगा. अब वो तो बाई चांस ब्लीडिंग मक्लेरी का हाल पूछते हैं तो उनको बताता है कार्टर, ही इज इन रैडक्लिफ नाउ, रियली ग्रॉगी ही वॉज, मीन्स ही वॉज ब्लीडिंग बैडली. When we got to examination offices, they rang for the ambulance from there. तो एल्सफील्ड वे में उन्होंने एग्जाम ऑफिस में वो रुके और वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया. गवर्नर रैंग द रैडक्लिफ एक हॉस्पिटल है एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. मक्लेरी यू से? यस, ही इज अ पर्सन. I don't think there's anyone. Yes, there is. You'll find one of your ambulances picked him up from Elsfield Way. Oh yeah, that, yes. We sent an ambulance, all right. But when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was. Just vanished. Not a sign. But the governor was no longer listening. And the truth seemed to hit him with almost physical impact somewhere in the back of his neck. और अब गवर्नर को सब कुछ समझ आया. कार्टर के साथ ब्लीडिंग मक्लेरी को भेजा तो ज़रूर था, एल्सफील्ड वे से एम्बुलेंस को कॉल किया था ज़रूर था, एम्बुलेंस रैडक्लिफ हॉस्पिटल से आनी तो ज़रूर थी. कार्टर ने बोला कि मैंने मक्लेरी को वहाँ पर छोड़ दिया और मैं आ गया और वहाँ से रैडक्लिफ की एम्बुलेंस ने उसको उठाया. बट एम्बुलेंस बोलती है कि वहाँ से तो बंदा गायब ही हो गया था. इसका मतलब एल्सफील्ड वे से ब्लीडिंग मक्लेरी भाग गया. अगर वो भागा तो भागना किसने था? एवेंस ने. यहाँ पे गवर्नर को समझ आ गया कि सच्चाई क्या थी. क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड मक्लेरी. अब वो असली मक्लेरी के घर जाते हैं, वहाँ उनको देखते हैं तो पता लगता है कि रियल मक्लेरी जो था, he was securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there since 8:15 when two men had called and वहाँ पर दो आदमियों ने उसको बांध के उसका सारा सामान लेके वहाँ से वो चले गए थे. तो मतलब कि रियल मक्लेरी तो पहुँचे ही नहीं थे एग्जाम के लिए. Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing at all, and by tea time everyone in the prison knew what had happened. तो दोपहर तक शाम तक सबको पता लग गया कि it was not Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. तो जो इंसान अंदर रह गया था, ब्लीडिंग हो रही थी, that was real Evans. और वही एवेंस मक्लेरी का भेष बनाकर वो वहाँ से कार्टर के साथ खुद प्रिजन अथॉरिटीज ने उसको वहाँ से बाहर भेजा. सो दिस वॉज हाउ एवेंस रैन आउट ऑफ द प्रिजन. यहाँ पे एक पार्ट चैप्टर का खत्म हो जाता है. अब बात आगे कंटिन्यू भी होगी, ये नहीं कि वहाँ से भाग गया और बात खत्म. द फिश एंड अब एवेंस कहाँ पहुँच गया? अब एवेंस पहुँच गया एक जगह पे, उस जगह का नाम था चिपिंग नॉर्टन. मैं आपको पहले बता रही हूँ. दूसरा होटल का नाम है होल्डन गोल्डन लायन, इसका हिंट करेक्शन स्लिप में आया था. तीसरी बात, चिपिंग नॉर्टन जो लोकेशन है मैप में, इंडेक्स नंबर 313 और जो आपका सेंटर नंबर है उससे मैप में अगर डाल के ढूंढें तो ऑक्सफोर्ड शहर के मैप से हमें पता लगता है कि चिपिंग नॉर्टन ये जगह है और होटल गोल्डन लायन करेक्शन स्लिप में उसका इंडिकेशन दिया था. तो यहाँ पे एवेंस पहुँच गया. अब एवेंस यहाँ तक पहुँचा कैसे, और जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं इस प्लॉट में समझने वाले सभी अब आंसर होंगे. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हियर. अब वहाँ पे शाम को वो पहुँच गया. फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस आफ्टर अ जेंटल स्ट्रॉल अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन. एवंस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट. अ स्मार्ट न्यू हैट. अब उसने क्या क्या पहना हुआ है? न्यू हैट, क्योंकि उसके बाल बुरी तरह कटे हुए हैं, उसको तो लंबे लंबे बालों का शौक था. कंसील द रैकेज, वो गंदे से उसके तबाही वाले क्लोजली क्रॉप्ड हेयर छुपाती है स्मार्ट न्यू हैट. एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन. It would take a quite good while for his hair to regain his formal glories. पहले पुराने सुंदरता की तरह से वो वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा उनको उगने में. But what the hell did that matter?
ही वॉज आउट अगेन, लेकिन वो तो प्रिजन से बाहर था और इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता. हाँ, बिट ऑफ बैड लक व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सिजर्स. जैक्सन ने उसकी सिजर्स ले ली थी. कितना औखा हुआ. इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद द ओनली रेजर ब्लेड. उसको एक सिर्फ रेजर ब्लेड से अपने पूरे के पूरे बाल काटने पड़े सिर के. इट वॉज सो डिफिकल्ट. द प्रीवियस नाइट, वो भी पिछली रात. ओह बट ही हैड गुड लक. वो तो अच्छा हुआ गुड लक था. जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम take his bobble hat off. Oh, that really had been close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पे हमें पता लगता है कि बाल उसने क्यों काटे, कैसे काटे, पिछली रात काटे, रेजर से काटे. दूसरा, बॉबल हैट में क्यों पहन के रखी थी उसने, लकवक वाली कोई बात नहीं थी. इट वॉज ओनली बिकॉज ही हैड टू हाइड हिज हेयर बिकॉज दे वर कट. अचानक काट दिए गए थे और मकलेरी जैसे बना दिए गए थे. One of the worst things, funny really, had been the beard. He had always been allergic to sticking plaster, and even now his chin was irritating, sore and red. तो जो फेक बियर्ड थी वो दो बंदों ने पहनी थी. मकलेरी ने भी पहनी थी और इट वॉज एवंस ने भी पहनी थी जब वो मकलेरी बना था. तो उससे उसको खुजली हो रही थी. द रिसेप्शनिस्ट वॉजंट द सेम गर्ल. अब रिसेप्शनिस्ट यहाँ से चेंज हुई थी. हु बुक्ड हिम इन, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर. लेकिन इसको चेंज कर दिया गया था और इसका कोई फायदा ही होना था. As he collected his key, he gave his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, and ordered the Daily Express and asked for a daily early morning call at 6:45. Tomorrow was going to be another busy day. तो रात वो वहीं पे रहने वाला था, सुबह उसने वहाँ से जाना था. पर जैसे ही वो अंदर आएगा तो वो क्या देखेगा रूम में. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. He sort of liked the idea of being dressed up as a minister. डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग. उसको मिनिस्टर की पार्सन्स वाली रिस्पेक्टेबल सी ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लगा था. इट हैड बीन जॉली गुड आइडिया फॉर मकलेरी टू वेयर 2 ब्लैक फ्रंट्स, 2 कॉलर्स. डबल डबल ड्रेस पहन के मकलेरी आया था, मैंने आपको बताया था, इसी वजह से वो पतला लग रहा था. बट दैट टॉप कॉलर, फ्यू, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द ब्लैक स्टड. And there had been that one panicky moment when McCleary had only got just his hand up to neck in time to stop the collar springing apart before Stephens. और Stephens के सामने वो कॉलर तो खुलने ही वाले थे, तभी तो वो हमेशा उसने उसको पकड़ लिया था स्टीफन के सामने और स्टीफन को पता नहीं चला. They got that little problem worked out all right though. A pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. जब भी वो देखता था घूर के पीप होल में से, तो उस टाइम फटाफट से वो मुंह में पेन डाल के ऐसे ड्रामा करता था कि ही इज थिंकिंग फॉर द आंसर्स. Easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar. लेकिन ब्लैंकेट में कपड़े तैयार करना, ब्लैक फ्रंट तैयार करना और स्टड लगाना कॉलर के पीछे का, ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी. Everything else had gone beautifully smoothly though in the car. और अल्टीमेटली उसको कार में क्या क्या मिला था, उसके they had promised, उसके फ्रेंड्स ने प्रॉमिस क्या क्या किया था, soap and water, clothes and a map. हाँ, मैप तो बहुत ज़रूरी था. Ordnance survey map of Oxfordshire. He got some good friends, some very clever friends. ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर फ्रेंड्स. इन लोगों ने उसको मैप पहुंचाकर, लोकेशन इंडिकेट करवाकर, इंस्ट्रक्शंस में उसको चिपिंग नॉर्टन तक पहुंचा दिया. He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him and then stood closer to the spot like a man who just caught a glimpse of the Gorgon. और एकदम जैसे कि कोई भूत देख लेता है, ऐसे वो एकदम से डर के खड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि सामने कौन था. अब होटल के कमरे में कौन आ जाता है, गवर्नर. गवर्नर को कहीं से पता लग गया कि वो चिपिंग नॉर्टन में है और उसके पहुंचने से पहले होटल के रूम में गवर्नर इज ऑलरेडी देयर. Sitting on the narrow bed was very last man in the world Evans had expected or wanted to see. It's not worth trying anything, said the governor. And as Evans' eyes darted desperately round the room, I've got men all around the place. Well, there were only 2 really, but Evans didn't need to know that. He let the words sink in. Women too. Didn't you think that blonde girl in the reception was rather sweet? तो गवर्नर उसको कहते हैं कि मेरे आदमी बहुत हैं आसपास, चाहे 2 ही थे, और एक वो कहता है विमेन भी है मेरे साथ. मतलब इसी वजह से गवर्नर क्लेम करता है कि जो रिसेप्शनिस्ट चेंज हुई है वो मेरी वजह से, क्योंकि मेरी ड्यूटी पे है वो लड़की. एवंस वॉज शेकन. अब एवंस यहाँ पे पूरा ही इज शेकन, वो बिल्कुल निराश हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया. ही हेल्ड हिज हेड बिटवीन द हैंड्स एंड फॉर सम टाइम देयर वाज साइलेंस. नाउ हो सकता है गवर्नर इज जस्ट ट्राइंग टू स्केयर एवंस, बट लेटर ऑन वी कम टू नो दैट गवर्नर हिमसेल्फ इज गोइंग टू बी बिफोर्ड. यहाँ पे फिर वो दोबारा उसको बेवकूफ़ बनाएगा. फाइनली एवंस स्पोक.
इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। कहता है जरूर तुमने वो करेक्शन स्लिप पढ़ ली होगी जो तुम यहाँ तक पहुँच गए। वेल द गवर्नर फेल्ड टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस। देयर आर अ फ्यू पीपल हु नो लिटिल जर्मन। वो कहता है हाँ मुझे भी जर्मन आती है। स्लोली वेरी स्लोली एवेंस रिलैक्स्ड। ही वॉज बीटन। उसको लग रहा था कि वो हार गया। ही सैट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल र्यूफुली। यू नो इट वॉजंट रियली अ मिस्टेक। वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं थी, करेक्शन स्लिप। We hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. The really important thing for us was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? तो वो कहता है कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग ये निकलवा पाते कि एग्ज़ाम शुरू कितने बजे हुआ, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के एंड का टाइम पता लगाना था ताकि एक पॉइंट पता लगे जहाँ पे एवेंस अकेला हो। और उस पॉइंट को पता लगाने के लिए हमने वो फेक कॉल करी। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फेक कॉल थी उसके दो पर्पस थे। एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेट। तो गवर्नर कहता हाँ तुमने मुझसे एग्जाम के टाइम पूछा और मैंने खुद ही तुम्हें बता दिया कितना बेवकूफ़ था मैं। वेल somebody did. So you see, sir, that correction slip killed two little birds with a single stone, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started. The governor nodded. It's a pretty common word. Good job, it's pretty common, sir. I've never known where to come to, would I? Nice name though, some Golden Lion. How did you know which Golden Lion it was? There are hundreds of them. Same as you, Evans. Index number 313, sentence number 271. Remember 6 figures, and if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that 6-figure reference lands you back in the middle of Chipping Norton. Yeah, you're right. We hoped you'd run off to Newbury. We did. Well, that's something, I suppose. That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. No, of course, I couldn't. I knew roughly what it was all about. But we just hoped it would throw a few spanners in the works, sort of muddle everybody a bit. अब यहाँ मैं फटाफट आपको दो बातें बता दूँ। इस कन्वर्जेशन में क्या हुआ, करेक्शन स्लिप की बात हो रही है। करेक्शन स्लिप में से जैसे वो 3 और 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन 6 डिजिट्स बना के मैप के ऊपर लगाए तो इनको लोकेशन मिलती है चिपिंग नॉटन। इसी फॉर्मूला से एवेंस ने पता लगाया, उसको मैप उसके फ्रेंड्स ने दिया था, उसको जब रैडक्लिफ से उन्होंने जब एल्सफील्ड वे से उठाया, और ये फॉर्मूला लगा के गवर्नर ने भी चिपिंग नॉटन का लोकेशन पता लगाया। सेकेंडली वो कहता है कि फिर तुमने वो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे क्यों छोड़ा। वो कहता है इसलिए छोड़ा ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन पेपर में वो लाइन लिखी हुई थी ना 4 बातें, दैट डू नॉट हिट हिम, डू नॉट ओवरडू स्कॉट्स एक्सेंट। वो कहता है मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम लूज हो जाए, तुम थोड़ा टाइम वेस्ट करो न्यूबरी में, तो इसलिए मैंने तुम सबको कंफ्यूज करने के लिए वो छोड़ा था कि तुमको मैं मिसगाइड करूँ। Governor stood up. Tell me one thing before you go. How on earth did you get that blood to pour over your head? अब एवेंस उसको ब्लड के बारे में बताएगा। वो बताता है clever sir, very clever that was. How to get a couple of pins of blood into a cell when there's no one to start off with. When the invigilator, shall we say, gets searched and before he comes in. Yes sir. You can well ask about that, and I do not know if how to tell you. After all, I might want to use that particular. तो वो बहाने मारता है कि वो इन्विजिलेटर ने आना था और सबकी चेकिंग थी, तो मैं करता भी क्या, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। एनीथिंग टू डू विद दैट लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। एवेंस ग्रिन्ड फीबली। क्लेवर दो, वाज़न्ट इट? तो वो रबर रिंग के साथ ब्लड अंदर लाया गया था। So now Evans is going to tell us that it must have been a tricky job sticking a couple of pins. Nah, you got it wrong, sir. तो कहता है इतना खून तुमने कैसे लगाया उसके अंदर डाला कैसे, तुमने लिया किसका? It's the clotting, you see. That's the big trouble. We got the blood easy enough. तो ब्लड तो इजीली मिल जाता है। पिग्स ब्लड मिल गया था फ्रॉम अ स्लॉटर हाउस इन गिडिंगटन। स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। तो कहता है कि उसको क्लॉटिंग ना हो उसके साथ थोड़ा सा एक्चुअल ब्लड लगाना पड़ता है, और साथ में क्या लगाना पड़ता है, 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, और ये केमिकल लगाना पड़ता है। डिड नो दैट, डिड यू सर? तो वो उसको पूछता है आपको ये बात पता थी? गवर्नर shook his head in a token of reluctant admiration. We learn something new every day, they tell me. Come on, I'm glad. तो यहाँ पे हमें फिर पता लगता है कि एवेंस was much intelligent than the governor. His ways, his knowledge of sciences, his practical ideas. He deserves to win in this battle of wits. जो भी आपको मैंने थीम बताई है, हर जगह हम बार बार देख रहे हैं कि यही प्रूव हो रहा है कि हर तरह से एवेंस ने जो भी टैक्टिक्स लगाए थे वो सारे उन सभी पे
prison authorities, they kept on getting befooled. ये सब क्यों हुआ, क्यों वो mistakes कर रहे थे? Just because they lacked wit, they lacked intelligence. So here again, the governor admires, he accepts his defeat and inferiority as compared to Evans, and he says that we learn something new every day, or he could learn from a prisoner also. Evans made no show of resistance, and side by side the two men walked slowly down the stairs. Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? You had no visitors, I've seen to that. You had no letters. अब वो दोबारा उसको पूछता है, वो दोनों बातें करते करते नीचे स्टेयर्स से जा रहे, और एवंस वहाँ से दौड़ सकता था, बट वो एक शांत आदमी था, वो ऐसे दौड़ता नहीं होता था. सो वो गवर्नर के साथ चलता जाता है और वो बोलता है, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो. व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? माई जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट. You mean he was from the technical college? Was he? Evans was almost enjoying it all now. Ever checked up on him, sir? God Almighty, there's far more going on than I. Always will be, sir. Always will be का मतलब, अब गवर्नर यहाँ पे बोल रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को तो यकीन नहीं आता कि तुम इतने चालाक हो, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हैं. 6 महीने से जो टीचर पढ़ाने आ रहा है वो भी तुम्हारा बंदा था. और एवंस उसका जवाब देता है ऑलवेज विल बी. वो कहता है ये तो अभी और भी चलेगा. एवरीथिंग रेडी? He asked the reception desk. अब यहाँ पे एक turning point आएगा. Evans, the van's out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. कि वैन पहुंच चुकी है. वैन कहाँ से आनी थी? आपको याद होगा, ये वैन वो वाली वैन आनी थी जो गवर्नर ने सेंट एल्डेट्स प्रिजन में भेजी थी. बट ये वैन कौन सी वाली वैन आई? ये वो वाली वैन आई जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोर्ट में भेजी थी. उस वैन में 2 प्रिजनर्स थे. ये वही लोग हैं. अब वो जो प्रिजनर्स हैं उनकी ड्रेस पहन के एवंस के फ्रेंड्स इस वैन में आ जाएंगे. एवंस विंग्ड एट हर, क्योंकि ये वैन वो है जो एवंस को चाहिए. इसमें उसके अपने फ्रेंड्स हैं. शी विंग्ड बैक. इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, और उसका दिन बन गया. नाउ दिस गर्ल इज ऑल्सो एवंस की फ्रेंड. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans, and together the 2 men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, but do you know any more of these modern languages? Not very well. Why? अब एवंस अरेस्ट होने लगा और वो अपने गवर्नर को बोलता है कि तुम्हें कोई और मॉडर्न लैंग्वेज आती है, इटालियन वगैरह आती है? अब इसका वो जवाब क्या देता है? एवन सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट एंड ग्रिन्ड हैप्पीली. और वो बहुत खुश है. खुश क्यों है? Nothing really, I just happened to notice that you've got some O-level Italian classes coming up next September, that's all. कहता मुझे लगता है कि अब तुम्हारे जेल में इटालियन क्लासेस ना लगा लें. Perhaps you won't be with us next September, Evans. तो वो कहता है कि क्या पता तुमने सितंबर तक जेल में रहना भी है कि नहीं. तो इस तरह से मजाक होता है. जेम्स रॉड्रिक एवंस appeared to ponder the governor's words deeply. और वो ऐसे लगता है कि उसके वर्ड्स को बहुत सीरियसली लेके बोलता है. No, perhaps I won't. शायद मैं वाकई तब तक ना रहूँ. As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent prisoner officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. तो जो उसके साथ prison officer था वो आगे ड्राइवर की तरफ बेंड करता है और बोलता है, For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. इसका मतलब उनके पीछे कोई है. इसका मतलब ये तीनों फिर से फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए. प्रिजन ऑफिसर फिर से क्या था? उसका एवंस का फ्रेंड था. Where do you suggest we make for? ड्राइवर ये बोलता है. ड्राइवर बोलता है ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट में, This reminds us that he is the same man who had dressed up as fake McCleary. What about Newbury? Newbury में कुछ भी नहीं था, कोई इसको क्लू नहीं था, वो सर्च हो चुका है, तो it was a safe place. एवन सजेस्ट करता है let's go to Newbury. So advantage of Newbury मैंने आपको बता दिया है, and it is the same man. और लास्ट मिस्टेक फिर से होती है कि वो उसी प्रिजन मैन को यूज़ करते हैं जहाँ पे अब इस बारी प्रिजन ऑफिसर्स थे, एंड दे वर अगेन impersonated by एवंस फ्रेंड्स. फाइनली गवर्नर नोज, वी कम टू सी अगेन एंड अगेन, ही नोज कि एवंस रुकने वाला तो है नहीं, ultimately he is going to run away. So this is where we end the chapter. So that was all for Evans tries an O level. एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, मैंने हर जगह पे मिस्टेक उनकी हाईलाइट की है, तो जितने भी मिस्टेक्स के पॉइंट्स हैं वो आपके पास आ गए. बैटल ऑफ विट्स, अगेन उसमें यही आएगा कि उन्होंने इतनी सारी मिस्टेक्स की, सो दे लूज द बैटल ऑफ विट्स. एवंस विंस देम बिकॉज ही डज नॉट कमिट अ मिस्टेक. अगर एक गलती की भी क्वेश्चन पेपर को छोड़ने की, उसको भी कवर अप प्लान उसके पास था. दैट इज़ वाई ही कुड एस्केप थ्रू द प्रिजन वैन इटसेल्फ. फाइनली बात आती है कि इसकी मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में पॉइंट दिए. कैरेक्टर्स के नोट्स मैं दोनों के आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी.
और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर कर लिए। पॉइंट्स टू पॉइंटर के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए भी अलग से आपको कंटेंट मिल जाएगा। सो आई होप यू enjoyed दिस वीडियो। आई हैव कवर्ड इट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए, बुक सामने रख के, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। So that was all for complete reading and explanation of the chapter, and I have also given you complete explanation through points in the form of summary, in the form of a flowchart or a table. Make the most of my videos and excel in English. This chapter is very important. It is surely going to be tested in exams. So all the best, keep excelling and have a great score.